सर कहते हैं ब्यूटी पैजेंट्स में मैं जाता नहीं हूँ। मैंने कहा ब्यूटी पैजेंट नहीं है ये ब्यूटीज़ को हम इम्प्रूव कर रहे हैं और उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने अपने शहरों में जाकर वो कैंसर अवेयरनेस के कैंप्स लगाएं और लोगों को लोगों को समझाएं कि हम कैंसर को फाइट कर सकते हैं। तो सर ने हमें अपना टाइम दिया। जोरदार तालियां प्लीज। स्टार्ट द प्रोग्राम।
Getting weak is not a simple thing. So what? I'm wearing this. Hello, I'm the patient of cervical cancer. So what if I'm wearing this? I'm a big fighter, I'm a daughter of our Air Force. So I'm a fighter, I want everybody should be like to follow me and be a good and big fighter. Thank you so much. Create awareness, breast and cervix cancer. Prevention is better than cure. Thank you. With regular checkup, we can fight cancer. It's time to end cervical cancer. Good evening, everyone. To be a victim or a survivor of cancer is your mindset. It's your choice. Choose wisely, women. Thank you. Sometimes you're not connected to the, to whatever's happening here. So it's not just clapping, it also means that you're connected to whoever here is here. And thank you so much for that. Thank you, Diljit, for having me here. And I wish you best for all your IVAs. And I have told you I will stand by you unconditionally, and you have my word. And it's a very nice cause. Cause बहुत बढ़िया है, and especially आजकल, you know how with cancer rate rising. So I think the thought behind it is very good. And God bless you for that. God bless all the contestants, everybody, all those people. Hi there. So have a great evening. राकेश जी
I think Daljit ji is an amazing human being, and she always extends herself to support everyone who needs her. And I think it's an outstanding cause that she has chosen, cancer awareness in women, cervical cancer and breast cancer. And I think it is very needed. And as she rightly said, women generally ignore themselves. एक औरत अपने आसपास सबका ख्याल रख लेती है, लेकिन जब उसका अपना ख्याल रखना होता है तब वो हमेशा अपने दूसरों को ज़्यादा महत्व देती है. तो ऐसी अवेयरनेस आने से ज़रूर एक दफ़ा आदमी के दिमाग में ये बात आती है कि मैं भी अपना चेकअप करवा लूँ. सो आई थिंक ये एक अमेजिंग कॉज है और बहुत ज़रूरतमंद कॉज है जिनको ये सपोर्ट कर रही हैं. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ हर इवेंट. We are here to support the very noble cause, and as Archana ji said, Daljit ji को हम लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि शी इज़ अभी जैसे ब्यूटी पेजेंट्स को लोग अलग तरीके से देखते हैं, पर यहाँ पे उनको ग्रूम किया जाता है और वो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, छोटे छोटे शहरों से आते हैं, फिर जाके ये अच्छा मैसेज पहुँचाते हैं और अर्चना जी ऐसे कॉज को प्रमोट करती हैं. जी जी शुक्रिया. Well, I'm very glad to be a part of this wonderful event. Actually, it's really very important to aware about these themes. कैंसर के लिए जितना ये लोग कर रहे हैं, it's like a charity, and इतने सारे important guests आए और जिस तरीके से ये लोग एक awareness दिखा रहे हैं पूरे और लोगों को help कर रहे हैं. It's wonderful. Seriously, I'm very happy and I'm very grateful कि I actually become a part of it. So yeah, it's good. Yeah, I'm actually working in my upcoming Bollywood movie, and it's gonna be a launch very soon in month of November. You can hear the date so soon. So yeah, I look forward for that. Thank you. कोई भी ऐसा इवेंट हो जो एक अच्छे मकसद के लिए होता है तो मैं वहाँ ज़रूर पहुँचता हूँ. कैंसर एक ऐसा रोग है जिससे बचना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. जिनको बहुत बड़ा सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट होता है, वही उससे निकल पाते हैं. तो यहाँ आज ये मिस इंडिया और मिसेस इंडिया ये जो पेजेंट किया गया है, इसका मकसद ये है कि जो कुछ भी इससे इकट्ठा हो वो कैंसर पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाए. तो मैं उन सबको बधाई देता हूँ कि एक बहुत अच्छे मकसद के लिए उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया. मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई. हर साल ये करें और हर साल मैं आऊँगा. थैंक यू. यस, काफ़ी सारे लोग सपोर्ट करने आए हैं इस कॉज को, बिकॉज़ ये कॉज लगता है कि सबके किसी के भी घर हो सकता है. बिकॉज बेटी, वाइफ, मदर, एनीबडी कैन हैव दिस. तो हमारा मकसद ये है कि हम अवेयर करें कि आप हर महीने 2 महीने बाद अपने टेस्ट कराएं तो कैंसर हो ही ना. Sorry? It's a very positive response because
फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हर एक जगह से, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इवन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड पीपल हैव फोन फ्रॉम अब्रॉड एंड फ्रॉम दिल्ली एंड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, एंड जो लड़कियां पार्ट ले रही हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, एंड अमेजिंग है। तो रिस्पांस तो बहुत ज़बरदस्त है, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला और आज के दिन मैं यहाँ पर हूँ। एंड मेरे ख्याल से मैं हमेशा जब भी दलजीत मुझे बुलाएंगी तो इस ऐसे कॉज के लिए तो मैं 100% आऊँगा। जी, वैसे भी सर मेरे हर कॉज के लिए आते हैं। 26 जनवरी का प्रोग्राम हो, स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस हो, दीपक जी ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। दीपक जी, आप पिछली बार 2-3 बार से आप इनके इवेंट्स पे आते रहे हैं आईवा के, आपको कितना परिवर्तन लग रहा है इनके अंदर भी और इनके आईवा के लगातार एक से एक नया फिल्म लेकर निकाल आ रहे हैं? क्या है, हमने बहुत से ऐसे अवार्ड्स देखे हैं जो चैनल्स के अवार्ड्स भी होते हैं। जब उनकी बिगनिंग होती है तो मालूम पड़ता है 10 आदमी होता है, लेकिन जैसे भी अवार्ड जैसे प्रोग्रेस होता रहता है, जैसे साल बीतते जाते हैं, तो यू कैन सी दैट पर्टिकुलर चैनल और प्रोग्राम इज ग्रोइंग, जैसे फिल्म फॉर अवार्ड, इवन ऑस्कर अवार्ड आई बिलीव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बहुत ही प्रोग्रेस कर गया है और आगे तो स्काई इज लिमिट। तो हमारे बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस है एंड अनबिलीवेबल, एंड आई बिलीव कि आगे चलता जाएगा। चलता है तो गाड़ी है, सर्कल है, आगे बढ़ते जाएगी। सर, आज से डॉक्टर नाम भी जुड़ गया, वो कैसे देखते हैं? हाँ, तो मैं शाम से नहीं डॉक्टर ही बोल रहा हूँ। तो या ये तो आज मेरे लिए सरप्राइज था, क्या मैं डॉक्टर दिलजीत लिखना शुरू कर। या ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप किसी भी लाइफ के अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको डिग्री की होने की ज़रूरत है। लाइफ इटसेल्फ इज़ अ टीचर, और लाइफ से इतना कुछ हमें सीखने को मिलता है और इतनी चीज़ें मिलती हैं, तो मेरे को लगता है वही डॉक्टरेट होती है। और वो डॉक्टरेट आपको काफ़ी लाइफ के अंदर, जो आप अच्छे अच्छे डॉक्टरों से भी और डॉक्टर्स भी आपकी बात मानना शुरू करते हैं, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। दलजीत जी, आप क्या कहना चाहिए, कितनी जवाबदारी और बढ़ गई? पहले तो है, हालांकि भाई आपके बंदों पर बहुत सारा जवाबदारी था, आज से डॉक्टर जुड़ने के बाद और जवाबदारी बढ़ गई है, कैसे देखते हो, क्या कुछ कहना चाहिए? पहले तो सिर्फ आईवा था, अब आईवा को डॉक्टरेट मिल गया है और आईवा वर्ल्ड पीस एम्बेसडर बन गई हूँ मैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से। तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। और अब यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है, अब मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं कोई गलती ना करूँ। मतलब पहले गलती करती थी। थैंक यू। गलती तो हर इंसान करता है। थैंक यू। मैं अरुण सिंह, आईवा और बॉलीवुड अड्डा की तरफ से आज दलजीत जी को पहले मुबारकबाद देता हूँ कि उनको डॉक्टर की उपाधि प्राप्त हुई है। और क्या आप सोचती हैं इसके बारे में आप? अरुण जी, ये तो पता नहीं एक मिराकल हो गया, बिकॉज बचपन से अपने नाम के आगे डॉक्टर करने का मेरा बहुत मन था। मैंने बड़ी कोशिश की, पढ़ाई भी की, लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाती थी बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और आज मुझे लग रहा है मेरी सोशल सर्विसेज की वजह से मुझे डॉक्टरेट मिला। आई थिंक आई नो वर्ड्स। आज के इस चौथे सीज़न में आईवा में क्या मकसद है आपका और क्या चीज़ लेके चल रही है, टारगेट आप? चौथे सीज़न में बिकॉज अब हम देख रहे हैं काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी हैं वो कैंसर के शिकार हो रहे हैं। ऋषि कपूर जी, सोनाली बेंद्रे जी, राकेश रोशन जी, जबकि आने वाले थे वो, उन दोनों की इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से वो नहीं आए हैं। इसीलिए हमने ये कॉज उठाया कि हम कहना चाहते हैं कि कैंसर जो है, अगर हम अपना ध्यान दें, हम प्रॉपर अगर केयर करें और प्रॉपर टाइम पे अपने इन्वेस्टिगेशंस करें, तो यस, हम कैंसर को फाइट कर सकते हैं। लेकिन जैसा आप एक बात, आज कॉमन लाइफ में हर किसी को डॉक्टर के पास ज़्यादा डरता है कि डॉक्टर के पास हम छोटी एक बीमारी लेके जाएंगे, पता नहीं कितनी बीमारियां बता देगा और कितने सारी दवाइयाँ लिख देगा। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट्स बताती हूँ। राकेश रोशन जी से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे दिलजीत, मेरे थोड़ा सा एक छोटा सा छाला था मेरे लिप्स पे, मुझे लगा ठीक हो जाएगा। जब उन्होंने नोट किया कि 15 दिन तक वो छाला ठीक नहीं हुआ, तो वो लीलावती में किसी गेस्ट को मिलने गए थे और वहाँ मिलते ही उन्होंने देखा कि उन्होंने जस्ट डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मेरा ये छाला ठीक क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा चलो हम बायोप्सी कर लेते हैं, और उसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर था। तो उन्होंने फिर वो कैंसर का जो है वो रिमूव करवाया और अब वो केमो के अंदर है एंड ही इज टेकिंग रेस्ट एंड ही विल बी ओके। बिकॉज हाँ, दोबारा आईवा पे आते हैं। हाँ, इस बार कहाँ से आपने कंटेस्टेंट चुने? नॉर्थ से, दिल्ली से, शिमला से, मणिपुर से, अगरतला से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़, रायपुर से एंड दिल्ली से। सब कितनी लड़कियां हैं टोटल कंटेस्टेंट्स? 26 कंटेस्टेंट्स हैं टोटल। और
सबने कुछ उम्मीदें बांधी होंगी, किसी के सपने टूटेंगे भी। नहीं, ऐसा नहीं। मैं ये मानती हूँ कि मेरा ये जो पैजेंट है बिल्कुल अलग है। आई बिलीव जो भी स्टेज पर आता है वो विनर है। इसलिए हमने कल एक छोटी सी सेरेमनी रखी, क्राउनिंग टू ऑल द क्वींस। मैंने सारी क्वींस को कल ही क्राउन दे दिया उनके टैलेंट के अनुसार। आज जूरी मेंबर डिसाइड करेंगे। आई हैव नो रोल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मुझे जो दलजीत से दोस्ती तो है ही, उसके लिए तो आना ही है, लेकिन जो उसका कॉज था ना, मुझे वो कॉज बहुत इंट्रिग किया कि कैंसर अवेयरनेस। और ये जो सी वर्ड है ना, ये सबके लिए बहुत ही एक वो क्या कहते हैं ना, डेंजरस वर्ड है। तो अगर ये दलजीत कैंसर अवेयरनेस की लाइंस में कुछ कर रही है, तो मैंने उसको कहा था कि एनीथिंग दैट यू डू विद अ कॉज, आई विल स्टैंड बाय यू अंडर वट एवर सर्कमस्टांसेस। तो इसीलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। ठीक है, धन्यवाद। और हम जानना चाहेंगे आपका इस समय एक्टिंग सफ़र क्या चल रहा है? फ़िलहाल मेरी एक पंजाबी फिल्म रिलीज़ हो रही है 22 नवंबर को, किटी पार्टी नाम की। ये मेरी पहली आउट एंड आउट कमर्शियल, जो जिसको बोलते हैं ना, वहाँ के दिग्गजों के साथ वो फिल्म है और मेरी डेब्यू है। अनलाइक व्हाट पीपल थिंक, ये मेरी पंजाबी फिल्मों में डेब्यू है। और मेरा एक वेब सीरीज़ है जिसका नाम है रसभरी विद स्वरा भास्कर। वो अभी बस वो भी आने वाला है अमेज़ॉन में। और मैं एक फ़िल्म के लिए जा रही हूँ अभी। एंड ऑल्सो माई शॉर्ट फिल्म जस्ट रिलीज विच इज़ नाउ गोइंग ऑन अमेज़ॉन प्राइम। तो ऊपर वाले की दया है, कृपा है कि बस सफ़र चल रहा है, गाड़ी चल रही है बस। भाई ये मिस्टर मिसेस जो अवार्ड फंक्शन इन्होंने किया है, इसका जो भी बेनिफिट होगा ये कैंसर वालों को जाएगा। और यही वजह है कि आज हम लोग बहुत ज़्यादा कैंसर पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मैं खुद एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जब टाटा हॉस्पिटल जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ पेशेंट को, तो बहुत परेशान हो जाता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे मतलब क्या हालत से गुजर रहे हैं, हम लोग देख के समझते हैं। तो जो फंड आता वो इस एसोसिएशन के माध्यम से, हमारी भी संस्था है उस माध्यम से, वो पूरा का पूरा फंड जो है हम लोग कैंसर पीड़ित को देते हैं। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, बाहर से भी जो लोग आते हैं उनकी पूरी मदद करते हैं। तो मैं सतीश जी को बहुत बधाई दूंगा कि इन्होंने नेक काम में मुझे यहाँ बुलाया है। अभी मैं सहारा से आ रहा हूँ, फिनाले चल रहा था वहाँ, और मैं कमिटमेंट किया था इनको कि मैं आपके फंक्शन में ज़रूर आऊँगा। मैं चूँकि 7 बजे आ गया था, लेकिन इनका शो शुरू नहीं हुआ था। तो एनीवे ये बहुत अच्छा है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं इसके लिए इस पूरी संस्था को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और देखिए, सबसे पहले तो मैं सुफियान कपाड़िया आपके चैनल के माध्यम से सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जो इतना बड़ा कॉज लेकर के ये जो इवेंट कर रहे हैं, जो फंक्शन कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई कॉज नहीं हो सकता किसी भी शो के लिए। सो मैं तहे दिल से इस शो के ऑर्गेनाइज़र को और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं और इनसे जुड़े हुए हर किसी शख्सियत को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और दिली तौर पर मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया है, जो जीतेंगे उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और जो नहीं जीत पाए उनको आगे वाले फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। मिस एंड मिसेस अवार्ड जो होने जा रहा है, मैं उसके लिए दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा इस संस्था के लोगों को, जिन्होंने खूबसूरत अवार्ड रखा है, जो न्यू कमर्स हैं, जो और मिसेस भी हैं, मिस्टर भी हैं, उन दोनों को, उन सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से एक अच्छा कुछ सीखने को मिलता है। और मान लो जिनको अवार्ड इस साल मिल रहा है उनको मुबारकबाद, जिनको नहीं मिल रहा है उनको अगले साल की तैयारी करनी है। और इससे जो फंड आएगा वो कैंसर पीड़ित को जाएगा। ये बड़ी खुशी की बात है और यही वजह है कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट होने आए। और मैं यानी जितने भी लोग हैं इस संस्था के, जिन्होंने हमें इनवाइट किया, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक अच्छे काम के लिए हम सबको यहाँ बुलाया गया। देखिए, थोड़ी सी मदद ही पहुँचाना एक बहुत बड़ी बात होती है। हम तो हर महीने तकरीबन 1 से 2 दिन जाते हैं टाटा हॉस्पिटल, और वहाँ जो माहौल है, जो मैं देखता हूँ कि बहुत बुरी हालत है लोगों की। अगर जिनके कॉन्टैक्ट्स नहीं है, जिनका वसीला नहीं है, वो बेचारे रोड पे पड़े हुए हैं। बच्चों के इलाज के लिए आज टेस्ट होता है
और फिर बोलते हैं कि आप 10 दिन के बाद आओ। तो ऐसी NGOs जब उनकी मदद करती है तो ऐसा लगता है कि सोने पे सुहागा हो गया। और यही वजह है कि मैं एक संस्था से खुद जुड़ गया हूँ, उसमें ट्रस्टी हूँ, और जो नीडी होते हैं जो मेरे पास अप्रोच करते हैं मैं उनकी पूरी मदद करता हूँ। और बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा हम लोग हेल्प करते हैं और करते रहेंगे। ओके सुफियान, आप क्या कहना चाहोगे इस शो को लेके, डायरेक्टिंग को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सूफियान कपाड़िया आप सभी के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जो आज ये शो हो रहा है बेसिकली जैसा पापा ने कहा, बिल्कुल इससे बड़ा कोई कॉज नहीं हो सकता कि इससे जो भी फंड ये रेस करेंगे वो सारे कैंसर पीड़ित लोगों के हेल्प में जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा नेक काम है, खुदा से जुड़ने वाला काम है और जिसकी हर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम जो भी हो सकता है हम करते हैं, जिस किसी भी फंक्शन में जा कर के, या अगर किसी को पापा डेफिनेटली मैं हमेशा देखता हूँ कि हर किसी की हेल्प करना है तो पापा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एंड वी डेफिनेटली मेक श्योर दैट हम जिस तरीके से भी हो सके किसी की भी हेल्प कर सके, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि इस शो की बात करूं तो इस शो के सारे ऑर्गेनाइजर्स को, स्पॉन्सर्स को और इस शो से जुड़े हुए हर किसी व्यक्ति को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे शो वो ऑर्गेनाइज करते हैं और ऐसे शो आगे भी करते रहें। थैंक यू सो मच। जी, मैं दिलजीत जी को सलाम करना चाहूँगी कि वो एक सोशल मुद्दे को ऐसी पैकेजिंग देती हैं जो एक फेस्टिव सा इवेंट बन जाता है, खुशी का पैगाम बन जाता है और ग्लैमर कोशेंट भी आ जाता है, और उसमें वो कोई सेंसिटिव मुद्दा साथ में उठाती हैं। जैसे आज उन्होंने कैंसर सेंसिटाइजेशन, कैंसर अवेयरनेस उठाया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कैसे कैंसर के लिए प्रिवेंशन ना सिर्फ पहला टेस्ट जल्दी करवाना है, बल्कि प्रिवेंशन इज़ इन the way you live your life, in how can you bring joy into your life। हर एक की लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, दुखद घड़ियाँ आती हैं और वो कहीं हमें चोट पहुंचा देती हैं और वही चोट बाद में घाव बनकर कोई बीमारी का रूप ले लेती है। कैंसर क्या, अब WHO सबने स्वीकार किया है कि मनोस्थिति ही मेन कारण है बीमारियों का। तो कैंसर बहुत सा ये पाया गया है। लुइस हे की आप फाइंडिंग पढ़ें, यू कैन हील योर लाइफ। तो उन्होंने बताया है कि कैसे रिजेंटमेंट से, इमोशनल हर्ट की, जब आपने किसी के साथ अच्छा किया हो और आपके साथ कोई बुरा कर दे, वो रिजेंटमेंट से कैंसर हो जाता है। इसके अलावा जो हम केमिकल्स अपने खाने में डाल रहे हैं, जहर आमंत्रण कर रहे हैं अपने खाने में, अपने शरीर के अंदर, वो हमें बंद करना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। जरूरी है समाज में इस तरीके का अवेयरनेस पैदा करना। जी, अवेयरनेस तो अब दस्तक दे रही है, ज़रूरत दस्तक दे रही है। जो हमने सोचा था कि बहुत रेयरिटी है, वो अब हम देख रहे हैं कैसे ग्लैमर वर्ल्ड के भी अच्छे अच्छे यंग एक्टर्स इफ़ेक्टेड हो रहे हैं और कुछ सरवाइव कर जाते हैं, जबकि एलोपैथी में उसकी मेडिसिन ही इतनी हार्ड है कि वो अपने में ही आपकी शक्ति हीन कर देती है आपको वो मेडिसिन्स। लेकिन कुछ लोगों में जीने का मुद्दा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो सरवाइव कर जाते हैं। तो वो सेंस ऑफ जॉय जीने का, यानी वो कहते हैं ना, हर पल प्रेजेंट मोमेंट में जिए। ये भी जानना चाहूँगी कि आज तक वो दलजीत कौर थी, आज से डॉक्टर दलजीत कौर हो गई, कितनी खुशी आपको हो रही, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं इसके लिए खुशी के अलावा मुझे बहुत संतुष्टि है कि हमारे एजुकेशनिस्ट पहचान रहे हैं कि जो लोग सामाजिक मुद्दों को उठा के उन पे कुछ संवेदनशीलता समाज में देना चाह रहे हैं, सल्यूशंस की तरफ काम करना चाह रहे हैं, ना सिर्फ उनकी विकृत भावों को प्रकट करें, बल्कि उसे सल्यूशन क्या निकल सकती है उसकी तरफ वो ध्यान देना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल हमें हमारी एजुकेशन संस्थाओं को ऑनर करना चाहिए। जो किया है इसके लिए
बहुत बहुत बधाई के पात्र है वो एजुकेशनल संस्था। मैं जैसे मैंने स्टेज पे भी कहा, मैं शुभ मल्होत्रा, मैं उनकी ना बहुत पुरानी दोस्त हूँ और इनका जो पहला शो इन्होंने किया था उसमें भी मुझे आमंत्रण किया था उन्होंने कि एक दूसरे को हम इंस्पायर करते हैं, बिकॉज मेरा अपना शुभास्ता फाउंडेशन NGO है और जिसमें हम महिलाओं को यही अवेयरनेस के बारे में बताते हैं। और मैं सिर्फ बॉम्बे नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में जाती हूँ, रूरल एरियाज़ में, और ये जो मुद्दा इन्होंने उठाया है इस और इनको डॉक्टरेट की जो पदवी मिली है बहुत ही डिज़र्विंग है। और दोस्त होने के नाते आज इतनी खुश हूँ मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये एक कैंसर ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान में औरतों को वो कहने का मौका नहीं मिलता, एक शर्मिंदगी होती है। ब्रेस्ट कैंसर ले लो, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ये मैंने किया था सिंटा में भी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन आई हैव डन दिस, ये एक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर टाटा मेमोरियल से 2017 में। एंड आप मानोगे नहीं कि जो टर्नआउट था सिंटा की ऑफिस में किया था, तब पंकज जी वहाँ के सेक्रेटरी थे, तो इट वाज सब ने, आदित्य पंचोली जी आए थे, सारे जो फ्रेटर्निटी, जरीना वहाब जी, सारों ने बहुत सराहा और कहा कि आप जैसी महिलाएं ये चीज़ लेके आती है, अवेयरनेस लेके आती है, बिकॉज हम महिलाएं ही एक दूसरे को आगे लेके और क्रिएशन ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। क्या अब हम माने कि अगली मुलाकात हमारी आप भी डॉक्टरेट हो? वैसे ही वर्ल्ड पीस काउंसिल ऑफ अमेरिका का हिंदुस्तान से चुना गया है और ज़रूर है कि हमें ये टाइटल जो हम इतने अच्छे नेक काम करते हैं तो जाहिर है वो मिलता है, तो हमें और प्रोत्साहन मिलता है कि हम और करें। सो ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमें सराहती है और रिकग्नाइज करती है। इट विल बी एन ऑनर। थैंक यू सो मच। रेणुका जी, आप सबने तो इन्होंने सबने बता दिया, अब आपके पास क्या बचा है बताइए। देखिए, मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगी कि फैशन की दुनिया से लेकर अगर हम एक सामाजिक कार्य की ओर बढ़ रहे हैं, दलजीत ने वो कदम उठाया है, अब कोई भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। पहली बात, जो 24 कंटेस्टेंट्स हैं, आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रूमिंग देम, उनकी एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, सोच विचार पर बदलाव लाने का मैंने थोड़ा प्रयास किया है। तो आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी, 24 पार्टिसिपेंट्स आर फ्रॉम डिफरेंट स्मॉल रीजन्स ऑफ इंडिया, झारखंड, छत्तीसगढ़, रायपुर, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, पटियाला। इन लोगों से मिलना, और आज ये कॉमरेड्स हैं, दलजीत के सैनिक हैं, जो पूरी सेना के साथ हर क्षेत्र में जाएगी सर्विक्स कैंसर के प्रति, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप एंड मोलेस्टेशन के प्रति अपनी जो कुछ इन्होंने इस 5 दिनों में सीखा है, दे आर गोइंग टू पास ऑन द मैसेज। तो कॉमरेड की सेना शुरू हो गई है। So it is just not a fashion show, but it is a fashion show with a big difference, क्योंकि ये परसेप्शन को, सोच को बदल रहा है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, प्रोफेसर रेणुका बांगर, फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि नामांकित लोग जैसे कल्याणी ललिता, आई ओनली नो यू एज दैट, सर्फ एक्सेल की ललिता, एंड वी हैव शुभ, ये सारे इतने महत्वाकांक्षी एंड वेरी एंटरप्राइजिंग एम्पावर्ड विमेन दलजीत के साथ जुड़े हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि वी आर हियर फॉर अ कॉज, not just cervical cancer, rape victims, and so many social causes of domestic violence. So Daljit deserves to get the honor of being a doctor, because now she's going to spread happiness in the society, and we are part of that, this comradeship. And as women, नारी शक्ति जो कहते हैं, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बदलाव आया है। हम नारी शक्ति बाहर निकल के, और हमारे घर वाले भी हमें प्रोत्साहन करते हैं। तो लाइक शी सेड, फ्रॉम द फैशन टू द, यू नो, कहते हैं फ्रॉम द किचन टू द रैम्प। Yes. हमने फ्रॉम द किचन टू द रैम्प औरतों को लेके आए हैं और अवेयरनेस क्रिएट करते हैं हर एक शहर में जाके। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी शक्ति है, एंड वी आर रियली थैंकफुल। दिलजीत ने हमें हमेशा, वो हम उसके साथ हैं और वो हमारे साथ हमेशा होती है। सो वी आर एन आर्मी ऑल टुगेदर। Absolutely. थैंक यू सो मच। कविता जी, चलते चलते कुछ ऐड करना चाहेंगे? यही कि कैंसर अवेयरनेस के साथ एक और मुद्दा जुड़ा है, वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन,
क्योंकि जितना हम ऑक्सीजन धरती में बढ़ाएंगे और जो है हमारे सोर्सेस उनकी रक्षा करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उतना हेल्दी होंगे, उतना कैंसर फ्री होंगे। क्योंकि कहते हैं जहाँ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वहाँ कैंसर के सेल्स नहीं रह सकते। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी इससे बहुत जुड़ा है। थैंक यू। करके वी आर डूइंग द सेमिनार्स फॉर द कई सब्जेक्ट। हम लोग ने कोई सब्जेक्ट अभी ऐसे स्पेशल सब्जेक्ट को लेके सेमिनार करने का प्लान कर रहा हूँ। उसमें हमने ऑलरेडी सेमिनार में अभी नवंबर 13 को बॉम्बे रोटरी क्लब को लेके हम लोग ने एक सेमिनार को कंडक्ट करने का प्लान किया है। उसमें हम लोग ने द साइबर रिलेटेड क्राइम और इन फ्यूचर में जो बच्चा लोगों जो छोटा बच्चा लोगों जो चाइल्ड राइट्स को वायलेशंस होते हैं और जो कंज्यूमर राइट वायलेशन होते हैं इसका रिलेटेड सेमिनार्स कंडक्ट करने का हम लोग का प्लान है। इसको हम लोग कई एक्सपर्ट को और गवर्नमेंट ऑफिसर को और बाकी कॉमन आदमी को इसके बारे में हम लोग अवेयरनेस देने वाले। दिस इज़ आवर मिशन। तो इससे हम लोग अभी इंडिया में कई स्टेटों में करने का प्लान है ऑलरेडी। तो ये हम लोग अभी प्लान में कर रहे हैं। Today I am receiving the I'm really very happy to receive this honorary doctorate from United University for Colombo. United Nations University. See, actually, it is a big movement what he is doing right now. So I'm really very happy to be part of this peace family, and also we just want to do more service for the nation. We want to develop our India in a Sanatanic way. We are trying our level best to spread peace all over the world with the help of our brothers and sisters. And once again, I am saying a big thank to my media people and my brothers and sisters who are here in this room. And Dr. Anilji and Madhuji and Dr. Madhu Krishnan, the Vice Chancellor of this great university. Thank you. Pranam.
See, this is a great platform for a talent and especially to the homemaker. See, आज के डेट में यूथ के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन when we talk about homemakers, wife, they are meant to sit at home. But ये प्लेटफॉर्म उन्हें एक they give us a chance to showcase their talent. So I think it's a great thing. See, I'm really glad that Lord Marie campus has been
is there to be launched, and wish them a great luck. Thank you. देखिए, आईवा जो कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे ब्यूटी पेजेंट आजकल बहुत हो रहे हैं और डेफिनेटली आजकल बहुत से पेजेंट्स कॉज को डेडिकेट करते हैं और आईवा ने डेडिकेट किया है कैंसर के लिए। तो मैं खुश हूँ क्योंकि डेफिनेटली अगर हम ऐसे पेजेंट्स अवेयरनेस करते हैं किसी के लिए या सपोर्ट करते हैं किसी कॉज के लिए, सोशल कॉज के लिए, तो वो एक अच्छा सा मैसेज देता है और मतलब एक टीम जनरेट करता है कि इस तरह से सोशल कॉज सोसाइटी में लेके आगे बढ़े। कैंसर के लिए मैं कहूँगी क्योंकि कैंसर में अगर आपको पता होगा तो टाटा हॉस्पिटल में बाकायदा मैंने 25 साल एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट नौकरी की है, फिर मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हुआ है। तो मैंने 25 साल कैंसर पेशेंट्स को इतने करीब से देखा हुआ है। मैं रिसर्च में थी लेकिन हमारे पेशेंट से काफ़ी कुछ हमारे सैंपल्स हाथ से आते थे, हमारा इंटरेक्शन था, सोशल वर्क था। तो कैंसर एक्चुअली क्या है मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने अपनी नौकरी की है, मैंने फील किया है। इसके अलावा मेरे पापा गए कैंसर से, तो उसका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं गाँव की कि वहाँ पे अवेयरनेस ले जाएं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हमारे शहर में भी ये कमी है। अगर हम किसी से कहते हैं कि आपको गांठ आ रही, बार बार बुखार आ रहा है या खांसी आ रही है, आप डॉक्टर को दिखा दीजिए, इट कैन बी बैड, इग्नोर किया जाता है और फिर पता चलता है कि कैंसर है कई बार और वो हमें एडवांस स्टेज में मिलता है। तो कैंसर का प्रॉब्लम ये है कि कई बार वो एडवांस स्टेज में प्राप्त होता है, लेकिन अवेयरनेस हो, जल्दी पता चले इस बीमारी के बारे में, तो डेफिनेटली ये बीमारी कंट्रोल में आ सकती है। तो इसीलिए आई एम वेरी हैप्पी कि आईवा ने कैंसर का कॉज लिया है एंड आई सपोर्ट दिस कॉज। एक्चुअली ये मिक्स प्रोग्राम था, पता नहीं था मुझे, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने डॉक्टर मधुकृष्ण जी को देखा जो यूएस से हैं। मैं इनको जानती हूँ क्योंकि मैं भी ग्लोबल एम्बेसडर हूँ और मैं कई नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एम्बेसडर हूँ। तो पीस के लिए काफ़ी काम करते हैं हम। तो मैं खुश हूँ कि यहाँ पे देखा मैंने, और जिससे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इन्होंने 20-30 साल जिन्होंने काम किया है उस क्षेत्र में, उन लोगों के प्रोफाइल लेके एनालाइज किया है, फिर दिया है। तो आई थिंक ये सिस्टम सही है। अगर जो इंसान अपने फील्ड में काम कर रहा है तो उसको इस तरह से सराहना, डॉक्टरेट अवार्ड देना बहुत ज़रूरी है और अच्छा काम है। लेकिन सिर्फ ये कहूँगी कि मैं जो इंसान या जो NGO है या जो व्यक्ति एक्चुअली काम करता है उनको अगर एक डिग्री दे तो एक सही मैसेज पहुँचता है। बाकी अगर हम हर एक को बांटेंगे तो सही मैसेज नहीं पहुँचेगा। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये किया गया है सिस्टमेटिकली, जो मुझे कहा गया है उस हिसाब से। सो आई एम वेरी हैप्पी। मधुकृष्ण जी को जानती हूँ मैं, अनिल को जानती हूँ, तो होल टीम आई नो, नॉट ओनली इंटरनेशनली, इंटरनेशनल ऑल्सो। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। मैं कहूँ अभी आज ही जो ऑनलाइन प्रेजेंट था गीतिका TGPC, वो आज उसका क्राउनिंग था। तो मैं वाशी से क्राउनिंग हुआ, वहाँ पे उसका और एक पेजेंट था कैटवॉक दिवा का, और आई एम वेरी हैप्पी कि गीती वो पेजेंट जीती है। क्राउनिंग 2 क्राउनिंग उसके हुए हैं आज, शी वन द पेजेंट टुडे, और मैं वो करके फिर भागकर यहाँ पर आई हूँ। सो गीती का, मेरी बड़ी बेटी का ऑनलाइन पेजेंट आज खत्म हुआ एंड शी इज़ बीन क्राउंड एज मिस फ्लॉलेस। एंड और एक पेजेंट कैटवॉक दिवा पेजेंट जीती है, जो बाकायदा एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उसके लिए, एंड वी आर वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश हैं उसके लिए। सेलिब्रेशन होता है नॉट ओनली इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ नवरात्रि की, एज रेखा गौड़ ऑल्सो एंड एज वाइफ ऑफ तिवारी जी, जो आपके भाभी जी घर पर है, आपके फेवरेट पॉपुलर कैरेक्टर जो एक्टर हैं आप लोगों के, उनकी तरफ से भी और पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए, डांडिया खेलिए, बट सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। थैंक यू सो मच।
शानदार, बहुत ही मज़ा आया, फैंटास्टिक। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। रोटरी में जो बड़ा प्रोजेक्ट जिसके साथ में जुड़ा हूँ, बच्चे लोग का फ्री हार्ट सर्जरी। पिछले 3 साल में 2000 बच्चे लोग की हम सर्जरी कर चुके हैं और आगे साल 2 साल में 5000 और बच्चे लोग को हेल्प करने का हमारा इरादा है। कैंसर का भी काफ़ी काम करते रहते हैं, तो कोई भी बच्चा कभी भी कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें कांटेक्ट करें, हरजीत जी को कांटेक्ट करें, हम उनका पूरा ध्यान रखें। दलजीत जी का जो आईवा है, ये समझ लो एक ब्रांड एम्बेसडर क्रिएट करते हैं। अभी जो बच्चियाँ यहाँ पे आई हैं, जीती हैं, छोटे छोटे सिटीज़ से आई हैं, वो जाके कैंसर क्यों होता है, कैसे बचा जाए, सही टाइम पे इलाज किया जाए, ये सारी ट्रेनिंग उनको 3-4 दिन में दी गई है। तो ये समझो ब्रांड एम्बेसडर हैं जो शहरों में जाके इसका प्रचार करेंगे और रोटरी इस कॉज को सपोर्ट करता है। Everyone, I am Saloni Arora. Basically, I am from the Chandigarh. Born and brought in Jalandhar and got married in such a beautiful city, Chandigarh. Yeah. Thank you so much. बहुत ज़्यादा। खुशी में क्या? खुशी को मैं कैसे जाहिर करना चाहूँगी?
पहले तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आई वुड बी अ विनर। ये 5 डेज जो दलजीत मैम ने हमें ग्रूम किया है, यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ मी। आई एम टोटली द चेंज पर्सन एंड खुशी को मैं उनके आइवा को ही आगे बढ़ा के जाहिर करना चाहूँगी। मैंने उनको इंटरव्यू राउंड में भी कहा था कि मैं जीतूं या ना जीतूं, पर मैं एक बेहतर इंसान बनूंगी, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करूंगी। उनके हर प्रोजेक्ट के लिए मैं हमेशा उनके साथ हूँ। मैं गरिमा अग्रवाल, मैं लखनऊ से आई हूँ। मेरी शादी के 16 साल हो गए। मेरी 2 प्यारी बेटियाँ हैं। 16 साल के बाद मैं यहाँ पे आई आपके सामने, आप लोगों के सामने खड़ी हुई और जीती भी, तो शायद मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से और मेरी मेहनत और लगन की वजह से। तो मैं हर लेडीज़ को यही बोलना चाहूँगी, कभी भी लाइफ में ये मत सोचे सीखने की लाइफ खत्म हो रही है या कुछ है। कोई भी हर लाइफ में आप सीखें और जो भी करना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें, वो सफलता आपको ज़रूर हासिल होगी। थैंक यू सो मच। इस खुशी को किस तरह से आप बयां करना चाहेंगे, क्या फील करें आप इस खुशी को, और किसको सबसे पहले आप शेयर करेंगे आपकी इस खुशी को? मैं इस खुशी को सबसे पहले तो अपने हस्बैंड को शेयर करूंगी। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और उन्होंने खुद बोला कि आप जाएं और आप जाके इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। मैं बच्चों को छोड़ के उनके पास अकेले पहली बार आई। बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, उन्होंने बहुत मेरे को मोटिवेट किया, बहुत साथ दिया और उन्हीं की वजह से शायद मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। Hello, good evening all. I am Megha Joshi. I am from Durg, Chhattisgarh. I am a student. तो मेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आप आज की विनर रही हैं। क्या फील करेंगे, कितनी खुशी है और अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह से शेयर करेंगे आप अपनी इस खुशी को? मेरे को बहुत खुशी भी है कि मैं विनर हूँ और मुझे लगा नहीं था कि मैं विनर बनूँगी, और बहुत दुख भी है इस बात का कि हम लोग कल चले जाएंगे। हम लोग एक फैमिली के जैसे अटैच हो चुके हैं और कल हम लोग अलग हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। बहुत ज़्यादा। उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, आइवा के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, दलजीत मैम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना उनके साथ आपको क्या कुछ सिखाया, क्या कुछ सीख कर आप अनएक्सपेक्टेड कॉन्फ्लिक्टेड यार, क्या कुछ सीख कर क्या मैसेज देकर आप इस मंच से जा रहे हैं? Your motivation, ma'am. Just like me.